Traditional welcome, Maharashtra. So when the guests are entering, please all the NSS volunteers, please stand up and put up your NSS flag. Please all of you, please raise and put up your NSS flag. Here we go. 1, 2, 3, go. Let the flag go on. Let the flag go on. Joseph. Welcome the honorable guest of the evening. All the NSS volunteers, put your clap together and welcome all the guests. And as we move this film, the switch on is going to happen. Joseph, NSS flag, welcoming all the delegates. Can we clap a little louder? Can we all clap a little louder? Requesting all the guests, can you please have your seats on the stage? With all of them. एक मिनट Girls, you are in the reception. Such a beautiful environment we created here. Welcoming all the please walk, ladies walk, all the way. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Can we just stop? All the girls, can we stop? Stop. थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं. किसी देर के लिए रुक जाते हैं. Just stop for a while. Well, once again,
welcoming all the honorable guests here. Welcome everyone here. Thank you so much for coming here. It's an honor to all have you here. Well, let's begin this beautiful morning. Let's begin this big day. Assalamualaikum, and welcome you all in this big day, 27th National Youth Festival 2024, Nasik, Maharashtra. Well, आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी, तहे दिल से आप सभी का वेलकम करना चाहूँगी आज के इस commendable grand day में. Well, we are going to begin this beautiful day. By requesting all the guests, you can all have your seats. Make yourself feel very comfortable. आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो जाए ताकि हम आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत कर सकें. Okay. So now I'm requesting to play the NSS song, which is already prepared, I think. Can we have? The man behind the show of the National Youth Festival and also the very biggest festival of the country and the very unique program. Thank you very much, sir, for making all the wonderful arrangements on behalf of the Maharashtra government and also on behalf of the National Service Scheme. I welcome you for the inauguration of the National Service Scheme, the Suvichar program. I welcome you, sir. Suvichar and Youth Convention from this wonderful auditorium. With this, I appreciate all of you having come to this wonderful program and all the contingent leaders and all the NSS volunteers and all the organizers, both from National Service Scheme and from the government of Can we have a huge round of applause? Request करना चाहूँगी डॉक्टर समीर चेलिया से आप सम्मानित करिए डॉक्टर सुहास दिवाश जी को. Can we all huge round of applause for this beautiful moment? Now I would like to request Mr. Sri Suhas Patil ji to felicitate Srimati Vanita Sood. Can we all huge round of applause once again? Now I'm requesting Mr. Sri Suhas Patil ji to felicitate Dr. Simiral Chelaya ji. Can we all once again do a clap for all this beautiful moment?
I'm requesting to Mr. Suhas Devas ji to felicitate Vilas Sindhe ji. Can we all huge round of applause? Come on everyone, let's do together. Huge round of applause. Vilas Sindhe ji, all the important dignitaries on the dais, all the participants, all NSS volunteers, all the officials from Government of India, from respective states, all the coordinators who have been working very hard to make this program a success. So first and foremost, I take this opportunity to welcome you all in Nasik. सुहास देवसे जी, हमारे मंत्रालय के निदेशक विनीता सूद, हाजरा साहब, चौहान साहब, धर्मेंद्र जी और आज की सुविचार की जो मुख्य वक्ता विलास सिंधे जी, सभी का मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए 2 मिनट की समय लूँगा। कुछ बातें एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना का, सुविचार का और सांप्रदायिक परिस्थिति का। जैसे कि महाराष्ट्र शासन ने हमारे लिए इतना अच्छा आयोजन किया और साथ में बताया कि 8 दिन में ये काम किया है। That has decided as life addressing the crucial issues of providing dignity and sustainability of Indian farms. मैं बताना चाहूँगी एक फार्मर फैमिली से पले बड़े हैं वो, और उन्होंने ये बहुत इनकरेज करके हम सबको इंस्पायर करने के लिए वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी स्टोरीज को शेयर करने आ रहे हैं हमारे बीच। तो मैं चाहूँगी आप सब उनका बहुत ग्रैंड, बहुत वाव वेलकम करें। वी कैन फील वेरी वेरी स्पेशल। एक बार वापिस स्वागत करना। आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उपस्थित ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी शर्मा जी, हमारा महाराष्ट्र स्टेट यूथ कमिश्नर डॉक्टर सुहास देवसे जी, ऑनरेबल सूद मैम, ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, all the youth friends who came from all parts of the country to participate in this function. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि आज मुझे यहाँ आपके साथ बात करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं? कृपया हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग किसी आईटी कंपनी का ऑफिस नहीं है। यहीं पर महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर भारत को दुनिया के नक्शे पर सम्मान के स्थान पर पहुंचा दिया। ये किसी आईटी कंपनी का ऑफिस नहीं है। यहीं पर महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर भारत को दुनिया के नक्शे पर सम्मान के स्थान पर पहुंचा दिया। किसान को लेकर अक्सर खुदकुशी, कर्जा, सूखा, भारी वर्षा, यही शब्द अखबार और समाचारों में मिलते हैं। क्षमता होने के बावजूद किसी दौर में दुनिया की भूख मिटाने वाले भारत पर आयात की नौबत आ चुकी है। अगर हम इन सब बातों की जड़ तक जाने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन भारत का खेती की ओर देखने का रवैया आज भी वही पुराना है। नासिक के पास मोहाड़ी में सन 2010 में खेती के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम के निर्माण की शुरुआत हुई और फिर कुछ ही सालों में एक युवा ने अपने किसान साथियों के साथ आसमान की ओर ऊंची उड़ान भरी।
दृढ़ संकल्प शक्ति, खेती का वैज्ञानिक अध्ययन, खेती की ओर देखने का व्यावसायिक दृष्टिकोण, सब कुछ बर्बाद करने वाला 9 सालों का सफर और 75 लाख का कर्जा। इन हालात में एक किसान युवा शुरुआत करता है और 15 सालों में खेती को सफल व्यवसाय का रूप देते हुए एक प्रेरणादायक मॉडल बनाता है। हम जानते हुए सह्याद्री फार्म्स ने किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक लैब स्थापित किए। मैं जब सह्याद्री के स्टडी टूर पर स्पेन, नेदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका गया था, तब हम वहाँ से जो सीख कर आए थे, हमें जो मार्केट यहाँ पर उपलब्ध है उसमें से भारत ही नहीं तो अन्य देशों में भी काफ़ी उपलब्धियाँ हैं, पर उन्हें जो चाहिए उन्हें वही मिलना चाहिए। उन्हें जिस प्रकार के अंगूर चाहिए, उनका जो स्वाद चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वही क्वालिटी मिलनी चाहिए। वे सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकली जानी थी वो यहाँ पर लेकर आए थे। फिर हमने उनमें से RR15 लगाया, अब RR79 लगा रहे हैं। जो थॉमसन है उसकी क्वालिटी सुधारने का प्रयास जारी है। कंपनी ने बिठाए वेदर स्टेशन से हमें जानकारी मिलती है कि बारिश कितने दिनों बाद आने वाली है, कितने घंटों बाद होने वाली है, कब आने वाली है। उसके अनुसार छिड़काव का टाइम टेबल या फिर किसी अन्य काम का टाइम टेबल निश्चित किया जाता है। उसके बाद लैब के हिसाब से हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं। उसके बाद पिटियोल परीक्षण किया जाता है। उस पिटियोल परीक्षण में क्या देखा जाता है, तो पेड़ों को सही खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो उचित होगा वही दिया जाता है। उसमें से जो भी माल तैयार होता है, तैयार होते समय ही हमें यकीन होता है कि इस माल को बाद में, इस क्वालिटी को बाद में कितने पैसे मिलने वाले हैं, और उन्हीं पैसों से आज किसान स्टेबल हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी फसल नश्वर होती है, लेकिन अगर उस पर सही प्रक्रिया की गई तो उसकी शेल्फ लाइफ और बाजार में उसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। सही समय पर इस बात को जानते हुए सह्याद्री फार्म्स ने फूड प्रोसेसिंग के जरिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रेंज डेवलप की। प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने से किसान और ग्राहकों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम हुआ। क्रांति के लिए किसान का सक्षम होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट में डटकर खड़ा रहना है तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। इसी विचार से किसान और खेती की बुनियादी जरूरतें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सिस्टम के लूप होल में सुधार करते हुए सह्याद्री फार्म्स ने खुद की सफल इकोसिस्टम डेवलप की है, जो आज भारत के अन्य कृषि संस्था और किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हुई है। कोई भी क्रांति अकेले नहीं हो सकती, इसीलिए खुद प्रगति पथ पर चलने वाले सह्याद्री फार्म्स ने अन्य फार्मा प्रोड्यूसर संस्थाओं को साथ लेकर उन्हें सक्षम करने का काम शुरू किया। अण्णा हमेशा हमें सलाह देते थे, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। उसमें सह्याद्री की उप कंपनी के तौर पर सह्याद्री सावरगांव जोन इस कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में है 465 सदस्य। 1300 एकड़ अंगूर क्षेत्र पर जो यंत्रणा जरूरी थी वो कैसे होगा। मतलब ओलंपिक में मुझे खेलना है, लेकिन मेरी तैयारी तो गांव में जो पूरी है वो वैसी है।
जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, हो थारा नौलछन गंगा किनारा, कतू भले लगो मेरो पहाड़ा। Good afternoon, all the lovely delegates from all the different states and union territories. Myself, Akshay Dixit, representing Uttarakhand here in National Youth Festival 2024. I am amazed to be a part of this immense enthusiasm radiating by all the volunteers present over here. Do you know we call Uttarakhand Dev Bhumi? Dev Bhumi means land of gods. विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी निकाली जाने वाली पैदल यात्रा नंदा राज जात यात्रा भी उत्तराखंड से ही निकाली जाती है। हम अक्सर एनएसएस में विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आपको भी अगर मौका लगे तो इस जीवन काल में उत्तराखंड अवश्य आए। हमारे उत्तराखंड में एनएसएस के लगभग 70,000 वॉलंटियर्स इस समय काम कर रहे हैं। इस देश की विविधता एवं सुंदरता को देखकर हम तो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। क्या आपका भी यही हाल है? अगर है तो आइएगा जरूर उत्तराखंड में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा एनएसएस यूनिट है, 1241 यूनिट्स। मैं बताना चाहता हूँ, भारत दर्शन अमृत कलश यात्रा, माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, मेरी मिट्टी